Hello everyone, this is Amit Mishra. Today I am going to explain you some extracts of Merchant of Venice, Act 3, Scene 2. Some parts we have already done. Previously I have told you that Bassanio, he was saying that I am bereft of my, you have bereft me of all words. आपने मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया. Means I have no words. He was puzzled, he was surprised. Still he was the winner, he has chosen the right casket. Still he was not sure. एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे कॉम्पिटिटर की तरह, एक ऐसे पार्टिसिपेंट की तरह puzzled है, सरप्राइज्ड है, जो जीत तो गया है बट उसको भी ये विश्वास नहीं हो रहा, ये ट्रस्ट नहीं हो रहा कि ये जो उसके लिए अप्लॉज हैं, जो अप्लॉज हो रहा है सारा उसी के लिए. After the speech of Bassanio, there is a speech of Nerissa. Nerissa is saying, "My lord and lady, it is now our time that we stood by and seen our wishes prosper to cry, good job, good joy, my lord and lady." She is saying, "My lord and lady, it is now time for those of us who have stood by here and seen our wishes come true." She is saying that it is our time now. Now it is our time. What to say? To say good joy, to cry out good joy, good joy. And for whom? For my lord and lady. ये हमारा टाइम है कि हम विश करें कि this is a good job, this is a great joy for us, and we want to wish all these things for my lady and lord. Now Gratiano के बारे में हम लोगों ने देखा था. Gratiano बहुत talkative person है. He is also saying, "My lord Bassanio and my gentle lady." दोनों को एड्रेस कर रहा है, Bassanio और पोर्शिया दोनों को एड्रेस कर रहा है. "My lord Bassanio and gentle lady, I wish you all the joy that you can wish." जो normally wishing, जो greetings होती हैं, they are all giving greetings. "For I am sure you can wish none from me. And when your honor mean to solemnize the bargain of your faith, I do beseech you, even at that time I may be married to." Gratiano विश करने के साथ में और कुछ भी इसके मन में है, ग्रीट करने के साथ में कुछ और भी कहता है. कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ, पहले तो उसने बोला कि आई हैव लेफ्ट नन फॉर यू टू विश फॉर मी, मैं उसके लिए और मेरे पास कुछ बचा नहीं कि आप मेरे लिए कुछ विश करें. लेकिन उसने एक अपनी डिजायर मेंशन की, अपनी एक इच्छा बताई. व्हाट ही सेड दैट व्हेन यू हैव योर वेडिंग सेरेमनी, आई बेग, आई रिक्वेस्ट. क्या रिक्वेस्ट करता है? कि मैं भी उसी समय मैरिज करना चाहता हूं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी मैरिड एट दैट टाइम. ही इज ऑल्सो विलिंग टू मैरी. वैसे नहीं कहता विद ऑल माई हार्ट, सो दो कांट्स गिव अ वाइफ. विद ऑल माई हार्ट, बिल्कुल, certainly with all my heart I will say yes, I will say with all my heart. But condition क्या है? So though can't get a wife. क्या जरूरी है? You should have a wife. Without wife, how can you marry? How can you marry without wife? Gratiano reply करता है उसका, "I thank my lordship." This is the speech. "I thank my lordship you have got me one. My eyes, my lord, can look as swift as yours. You saw the mistress, I beheld the maid." This is again he is revealing something. "I thank your lordship you have got me one." He is saying that because of you only, Bassanio, my lord, because of you only I have got a wife. You have bought a wife for me. My eyes, my lord, can look as swift. Swift means तेज होता है. Can look as swift as yours. My eyes are as quick as yours. मेरी आइज उतनी क्विक हैं जितनी की आपकी. My lord, मेरी आइज भी आप ही की तरह ही क्विक है. You saw the mistress. आपने मिस्ट्रेस मीन्स पोर्शिया को देखा. I beheld मीन्स देखना. I beheld the maid. मैंने मेड को देखा. Who is maid? Who is maid? पोर्शिया के साथ में नेरिसा. जब उसने बेसेनियो ने पोर्शिया से मैरिज करने का डिसाइड किया था, एट द सेम टाइम ग्रेशियनो डिसाइडेड दैट ही विल मैरी नेरिसा.
I beheld the maid. You loved, I loved for intermission. You fell in love. You were in love. So was I. जैसे आप लव में थे वैसे मैं भी था. You loved, I loved for intermission. No more pertains to me. No more pertains to me, my lord, than you. Just like you. आप ही की तरह है. I don't want to wait. मैं भी वेट करना नहीं चाहता. I don't want to wait like you. जैसे आपसे बोला गया था वेट करने के लिए कैस्केट जब चूज करने की बारी आई थी आपने वेट नहीं किया. इन द सेम वे आई ऑल्सो डोंट वांट टू वेट. योर फॉर्च्यून स्टूड अपॉन द कैस्केट देयर. आपकी फॉर्च्यून कैस्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी. योर फॉर्च्यून वॉज डिपेंडेंट ऑन कैस्केट्स फॉर wooing here until I sweat again and sweating until my very roof was dry with oath of love. At last, if promise, last I got a promise of this fair one here to have her love, provided that your fortune achieved her mistress. What is he saying? Your fortune, Bassanio को fortune dependent था casket के ऊपर. He is saying your fortune dependent on the casket there. मेरा भी वही था, क्योंकि अगर बेसेनियो फेल हो जाता तो पोर्शिया से मैरिज नहीं कर पाता. अगर वो पोर्शिया से मैरिज नहीं कर पाता तो वो नेरिसा भी ग्रेशनो से मैरिज नहीं करती. ही इज सेइंग दैट जब हम लोग यहां पे व्हाइल वी वर हियर आई वॉज वूइंग एंड आई वॉज स्वेटिंग, आई वॉज स्वेरिंग ओथ. कौन सी ओथ? ओथ ऑफ लव. मैं लव की ओथ ले रहा था. एट द सेम टाइम दैट ब्यूटिफुल वुमेन, ही इज टॉकिंग अबाउट नेरिसा, ठीक है, with and sweating until my very roof was dry. I was just sweating, I was just sweating, I was swearing the oath of love until my very roof was dry with oath of, जब तक कि love की ओथ से मेरा जो roof, that upper part of the mouth, it was not dry. बोलता ही रहा. He was taking the oath of love. At lastly क्या हुआ? That lady promised me love. She promised me her love. But condition थी कि if your master, means if you can win, if Bassanio can win the casket, then only she will marry Gratiano. Portia क्या कहती है? Portia is asking to Nerissa, is this true, Nerissa? क्या ये सच है, Nerissa? Nerissa replied, Madam, it is. So you stand pleased withal. बिल्कुल सही है. If you don't mind. If so you stand withal means if you don't mind, then it is true. Then Bassanio says, and do you, Gratiano, mean good faith? Bassanio Gratiano से पूछता है कि if you are accepting in good faith, if you are honest, if you are taking this oath sincerely and honestly, if you are taking this oath, अगर आप बहुत honestly या sincerely, कोई मजाक तो नहीं तुम्हारा है. Gratiano accepted. He replied affirmatively. He says, yes, faith, my lord. Faith, my lord. Then Bassanio replies, our feast shall be much honored in your marriage. He accepted their marriage proposal. He is saying that our feast shall be much honored in your marriage. It will be your honor to celebrate your marriage. हमारा बहुत honor होगा आपकी marriage को celebrate करना. जैसे हमारी marriage जो है, that is going to be a very feastful. In the same way, this is going to be a honor. Gratiano क्या कहता है? We will play with them the first boy for 1,000 ducats. Will play with them the first boy for 1,000 ducats. ये लाइन आपकी बुक्स में नहीं होगी. This line will not be in your books. कह रहे हैं कि हम लोग 1,000 we can bet for 1,000 ducats. किस बात के लिए bet किया जा रहा है? कि they are going to bear a son before Bassanio and Portia. Nerissa says, what? And stake down. What and stake down? What? Down, stake down मतलब क्या बोलते हैं कि again you are going to stake the money. You want to make stake down that money now. 1,000 ducats तुम lose करना चाहते हो क्या? You want to lose 1,000 ducats. Further speech, ये सारी speech you cannot get in your book. No, we will never win that sport, stake down. But who comes here? Lorenzo. कोई आता है कि हम लोग पहले तो कहता है कि नहीं, we are not going to win. But वहां पर कौन आता है? Lorenzo and his infidel.
Lorenzo and his infidel. कौन आ रहा है? Infidel. Infidel क्या होता है? Unchristian friend. Unchristian friend. What and my old Venetian friend Celery. और कौन आ रहा है? कौन उसका फ्रेंड है? वो उसने जेसिका के लिए मेंशन किया है और सेलरी ने वहां पर आया है जो कि वेनिस. वेनेटियन मीन्स बिलोंग टू वेनिस. Lorenzo, Jessica and Salerno they enter. Now Bassanio says Lorenzo and Salerno, इनके बारे में पहले देख चुके हैं. Welcome hither, you welcome here. If that the youth of my new interest here have power to bid you welcome. By your leave, I bid my very friend and countryman sweet Portia welcome. Lorenzo Salerno को वेलकम किया जाता है, ठीक है, उसको वेलकम करता है. और ये कैसे करा बेसेनियो? बाय द लीव ऑफ पोर्शिया. पोर्शिया की परमिशन से करना चाह रहा है. बिड माय वेरी फ्रेंड एंड कंट्रीमैन स्वीट पोर्शिया वेलकम. बाय योर लीव, बाय योर परमिशन, इफ यू परमिट मी आई वांट टू वेलकम माय कंट्रीमैन. पोर्शिया, आई वांट टू वेलकम माय कंट्रीमैन. सो डू आई माय लॉर्ड, दे आर एंटायरली वेलकम. पोर्शिया कहती है एंड सो डू आई माय लॉर्ड, मे बी आई एम ऑल्सो गोइंग टू वेलकम देम. Also going to welcome them. They're entirely welcome. का बहुत अच्छे, कहते हैं तहे दिल से स्वागत है. They are welcomed in a very warm way. Lorenzo says, I thank your honor. For my part, my lord, my purpose was not to have seen you here. अब यहाँ पर Lorenzo बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि I am going to meet you here. I was not actually intended. मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं यहाँ पर आपसे मिलूंगा. बट मीटिंग विद सेलेरियो जो कि एक फ्रेंड था, अब पहले भी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. जब सेलेरियो से इनकी मुलाकात होती है, ही एंट्रीट मी पास्ट ऑल सेइंग ने. जब सेलेरियो से मैं मिला, उसने मुझे बेग किया दैट ही शुड कम विद मी, यू शुड कम विद मी. ही डिड एंट्रीट मी पास्ट ऑल सेइंग ने टू कम. मैं उसको मना ही नहीं कर पाया टू कम विद हिम अलॉन्ग. उसने मुझे अपने पास आने के लिए मना लिया. बिकॉज ऑफ सेलेरियो आई एम हियर. सेलेरियो forced me that I should be here. I did, my lord. Celerio कहता है, I did, my lord. Yes, lord. Yes, it is true, my lord. I have compelled him to be here. And I have reason for it. Signor Antonio, commend him to you. Signor, मैं यहाँ पर आया हूँ, उसका एक रीजन है. आपके लिए कुछ भेजा है इन्होंने. उसने एक लेटर हैंड ओवर किया. कहता है कि कमेंड, उसको आपके लिए कुछ एक मैसेज भेजा है एंटोनियो ने. अब हम यहाँ से गेस कर सकते हैं कि एंटोनियो ने कौन सा मैसेज भेजा होगा. एंटोनियो जो रून हो चुका है, शायद उसके लिए कोई मैसेज है. एर आई ओप दिस लेटर, आई प्रे यू टेल मी हाउ गुड माई फ्रेंड डोथ. कह रहा है कि इसके पहले मैं लेटर ओपन करूं, बिफोर आई ओपन दिस लेटर, प्लीज टेल मी हाउ माई गुड फ्रेंड एंटोनियो इज डूइंग. मेरा गुड फ्रेंड एंटोनियो, हाउ इज ही डूइंग, कैसा है वो. सेलेनो ने कोई स्ट्रेट आंसर नहीं दिया, स्ट्रेट अवे आंसर नहीं दिया. वो कहता है, नॉट सिक माई लॉर्ड अनलेस इट इज बीन माइंड. ही इज नॉट सिक माई लॉर्ड अनलेस हिज माइंड इज सिक. जब तक कि उसके माइंड में कोई सिकनेस ना हो तब तक वो सिक नहीं है. नॉर वेल, नहीं ठीक है, अनलेस इन माइंड. सेम कंडीशन उसने बोली कि वो सही भी नहीं है. कब तक के लिए? ही इज नॉट डूइंग वेल आइदर अनलेस हिज माइंड इज डूइंग वेल. कह रहे हैं कि ऊपर से तो ना ही अच्छे हैं, ना ही सिक है, ना ही अच्छे हैं वो. His letter there will show you his state. आप जब ये लेटर रीड करोगे, then this letter will show you how is he faring. कैसे रह रहे हैं वो, ये लेटर आपको बताएगा. उनकी कंडीशन जो है वो लेटर बता देगा. आप लेटर रीड करो, you will find that how is he. अब ग्रेशिनो क्या कहते हैं? नेरिसा cheer you on stranger, bid her welcome. ये हर यहाँ पर यूज किया गया है जेसिका के लिए. नेरिसा से कहता है कि you should welcome जेसिका. इंडिकेट करता है जेसिका के तरफ, कहता है कि तुम इसका वेलकम करो, इस स्ट्रेंजर का वेलकम करो. हुई इज स्ट्रेंजर? जेसिका. उसको वेलकम करने के लिए कहता है बिड हर वेलकम योर हैंड. और सेलेरियो का वेलकम वो करता है उसका हैंड, जैसे हम लोग हैंड शेक करते, कुछ ऐसे ट्रेडिशन हुआ करते थे हैंड को किस करने वाले. व्हाट द न्यूज फ्रॉम वेनिस. उसने पूछा कि वेनिस के क्या न्यूज है. हाउ डोथ दैट रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो. देखो यहाँ पर भी एंटोनियो के लिए रॉयल मर्चेंट यूज किया गया है. कहा जा रहा है कि कैसा है एंटोनियो, कैसा है. आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ आवर सक्सेस. जब उसको पता चलेगा हमारी सक्सेस के बारे में, जब उसको व्हेन ही विल नो दैट वी हैव चूजन द राइट कैस्केट, ही विल बी हैप्पी. वी आर द जेसन्स, वी हैव वन द फ्लीस. जेसन इन एक्ट 1 सीन 1 वी हैव सीन द जेसन. जेसन वही पर्सन हु वाज द विनर ऑफ गोल्डन फ्लीस.
ड्रैगन के पास से और कोलचिस की बीचेस से वो गोल्डन फ्लीस निकाल के लाया था, वही जेसन की यहाँ पर बात की जा रही। वी आर द जेसन, हम लोग जेसन हैं, वी आर द विनर्स, वी हैव वन द फ्लीस। फ्लीस इज रेफरिंग टू पोर्शिया, फ्लीस इज रेफरिंग टू पोर्शिया। वी आर द विनर ऑफ पोर्शिया, वी हैव विन द कैस्केट सिस्टम। ये बात जब बेसेनियो विल नो देन ही विल बी वेरी हैप्पी। आई वुड यू हैड वन द फ्लीस दैट ही हैथ लॉस्ट। यहां पर भी सेलर इन स्ट्रेट अवे आंसर क्वेश्चन नहीं बोला, क्या बोला है? आई विश यू हैड वन इनफ, आई विश यू हैड वन इनफ टू रिप्लेस व्हाट एंटोनियो हैज लॉस्ट। एंटोनियो ने जो कुछ खोया है, आपने कुछ ऐसा विन किया होता। पोर्शिया क्या कहती है? देयर आर सम श्रीयूड कंटेंट इन योन सेम पेपर। यहाँ पर कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं, देयर आर कुछ यहाँ पर सीरियस मैटर है। जब जैसे जैसे लेटर पढ़ रहा है वैसे नहीं, उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही है। ही इज लूजिंग द कलर ऑफ हिज फेस, उसका फेस फेड होता जा रहा है, डल होता जा रहा है। एंड पोर्शिया इज ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स। Portia is saying there are some shrewd content in your same paper. There are some serious matter in that letter. उस letter में कुछ serious matter है. That steals the color from Bassanio's cheek. जिसकी वजह से the face of Bassanio is becoming dull. Some dear friend dead. कैसी न्यूज हो सकती है? Maybe the news of some dear friend's death. Else nothing in the world could turn so much the constitution of any constant man. नहीं तो in this word Nothing can affect such a stable man. इसने एक स्टोइक मैन को, इतने एक स्टेबल मैन को, इतने कांस्टेंट एक्सप्रेशन वाले मैन के चेहरे के एक्सप्रेशन को कोई और चेंज नहीं कर सकता। वर्ड्स एंड वर्ड्स, तो उसके चेहरे का जो डलनेस है बढ़ती और वर्ड्स होती जा रही है। विद लीव बेसेनियो, अब बेसेनियो के पास जाते कहते विद लीव बेसेनियो आई एम हाफ योर सेल्फ एंड आई मस्ट फ्रीली हैव द हाफ ऑफ एनीथिंग that this paper brings you। कह रहे हैं कि I am your better half, I am your better half। जो भी आपकी चीजें हैं उस पर हाफ पे मेरा राइट है, तो इट इज बेटर दैट यू शुड टेल मी द प्रॉब्लम, यू शुड टेल मी द कंटेंट ऑफ दिस लेटर। जो ये लेटर के जो कंटेंट्स हैं, जो आपके चेहरे पे डलनेस लेके आ रहे हैं, जस्ट टेल मी व्हाट इज देयर इन दिस लेटर। क्योंकि अगर आपके बाकी चीजों में मैं हाफ की पार्टनर हूं, बिकॉज आई एम योर वाइफ, तो आपकी सैडनेस में, आपकी टेंशन में भी आई एम द पार्टनर ऑफ द हाफ। पोर्शिया ने जब ये बोला है, ये जो लेटर आपके लिए टेंशन लेके आए, जस्ट टेल मी बिकॉज आई एम द बेटर हाफ ऑफ वॉट एवर दिस लेटर ब्रिंग्स यू। नाउ बेसेनियो रिप्लाइज, हो स्वीट पोर्शिया हियर आर फ्यू ऑफ अनप्लीजेंट वर्ड्स। क्या कहता है कि यहाँ पर कुछ अनप्लीजेंट वर्ड्स हैं, अनप्लीजेंट वर्ड्स हैं जो कि पेपर पे लिखे जा सकते हैं। प्लीजेंट वर्ड्स दैट एवर ब्लॉटेड पेपर। स्वीट पोर्शिया, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट अनप्लीजेंट वर्ड्स दैट वर एवर रिटन ऑन पेपर। जो पेपर पे लिखे जा सकते हैं, उससे जितने आज तक जितने वर्ड्स लिखे गए होंगे पेपर पे, उससे भी कहीं ज्यादा अनप्लीजेंट वर्ड्स हैं ये। Gentle lady, when I did first impart my loves to you, he is saying, gentle lady, पोर्शिया से कहता, gentle lady, when I first told you of my love for you, जब मैंने आपको पहली बार अपने लव के बारे में बताया था, I freely told you all the wealth I had ran in my veins। क्या कह रहा है कि मैंने एडमिट किया था कि the only wealth I was having, it was the blood running through my veins। मीन्स मेरा सिर्फ ब्लड नोबल है, मेरा सिर्फ ब्लड नोबल है। I am not having any wealth, but only I just belong to a noble blood। कोई फिजिकल वेल्थ मेरे पास नहीं है। I was a gentleman and I told you true, मैं एक जेंटलमैन था। By birth I was a gentleman, by birth I was a noble man। और उस समय जब मैंने बोली थी आपसे, then I was not wrong, मैं गलत भी नहीं था। I was not wrong। And yet dear lady, rating myself at nothing, you shall see how much I was a braggart। And yet, even मैंने बोला था I had no money, even I told you that I had no money, लेकिन जब मैंने ये बोला था कि I had no money, वो भी उससे भी कहीं बुरी कंडीशन थी, उससे भी कहीं ज्यादा बुरी कंडीशन में था। How much I was a braggart, how much I was a braggart। ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोस्ट ऑफ किया था कि मेरे पास कोई मनी नहीं है। ये क्यों बोला? क्योंकि वो तो लॉस में था ना, ही वॉज इन माइनस। उसको बताना चाहिए था कि वट एवर इज हैविंग, वो उसने कहीं से बोरो किया है। यही उसने बोला कि बोस्ट ऑफ की, जब मैंने ये भी बोला कि मेरे पास मनी नहीं है, एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज जस्ट बोस्टिंग ऑफ टू यू।
When I told you my state was nothing, I should then have told you that I was worse than nothing. जब मैंने आपको बताया था, when I told you कि I was having nothing, मेरे पास कुछ नहीं है, then I should have told you I was worse, कि मैं nothing से भी कहीं गया गुजरा हूँ. मेरे पास nothing जो होता है उससे भी कहीं माइनस में मैं जा रहा हूँ, उससे भी कहीं बुरी कंडीशन है मेरी. I should then have told you that I was worse than nothing. For indeed, I have engaged myself to a dear friend, engaged my friend to his mere enemy to feed my means. मैंने क्या किया? मैंने अपने मीन्स को पूरा करने के लिए, मैंने अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, मैंने अपने एक फ्रेंड से डेप्ट लिया, और उस डेप्ट को लेने में मैंने क्या किया? I have trapped my friend to a enemy. एक एनिमी के पास मैंने अपने एक फ्रेंड को एंगेज करा दिया. Who is enemy? शैलॉक. शैलॉक के पास, क्योंकि उसने पैसा शैलॉक के पास से लिया था. कह रहा मैं अपने स्वार्थ की वजह से, मैंने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से मैंने अपने एक फ्रेंड को ट्रैप करा दिया. Here is a letter, lady. The paper as the body of my friend and every word in gaping wound. आप लेटर पढ़ोगे आप, इट इज लुकिंग लाइक अ बॉडी ऑफ माई फ्रेंड. फिगर ऑफ स्पीच सिमिली यूज किया गया. कह रहे हैं कि जो लेटर है इट इज लाइक अ बॉडी ऑफ माई फ्रेंड. मेरे फ्रेंड की एक बॉडी की तरह, उसमें एक जो लेटर लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो गैपिंग वुंड्स की तरह है. मतलब जैसे जो ब्लड होता है ना, जब घाव लगता है, घाव से जब ब्लड बाहर आता है, बहुत तेजी से जब बाहर आ रहा है, कुछ वैसे ही ये लेटर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं जो लिखा गया यहाँ पर. ही इज सेइंग दैट दिस लेटर हियर इज लाइक द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड एंड एवरी वर्ड ऑन इट लाइक अ गैपिंग. जो ब्लीडिंग वुंड है उसकी तरह दिखाई पड़ रहा है उसको, जिसमें से ब्लड अभी भी बाहर आ रहा है, जिसमें से ब्लड आता ही जा रहा है, जिसमें से ब्लड आता ही जा रहा है. यहाँ पर बोला है उसने कि यहाँ उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ बेसेनियो एंटोनियो इज इन ट्रबल, इशूइंग लाइफ ब्लड. बट इज इट ट्रू? सेलेरियो से पूछता है क्या सही है? हैव ऑल हिज वेंचर फेल्ड? क्या उसके सारे बिजनेस फेल हो गए? व्हाट नॉट वन हिट? क्या एक भी शिप उसका नहीं आया? फ्रॉम ट्रिपोलिस, फ्रॉम मैक्सिको एंड इंग्लैंड, फ्रॉम लिस्बन, बारबरी एंड इंडिया, कहीं से भी जो सारे प्लेस मेंशन किए, ट्रिपोलिस, मैक्सिको, इंग्लैंड, कहीं से भी कोई शिप नहीं आया क्या उसका? एंड नॉट वन वेसल, एक भी शिप नहीं. एस्केप द ड्रेडफुल टच ऑफ मर्चेंट मैरिंग रॉक. जो मर्चेंट मैरिंग रॉक्स होती हैं, मर्चेंट को डिस्ट्रॉय करने वाले जो रॉक्स होते हैं, उनसे कोई भी क्या शिप एस्केप नहीं कर पाया. ये कैसे पॉसिबल है कि एक भी शिप वहां पर ना पे? ये कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे शिप्स उसके हुआ करते थे, नॉट अ सिंगल शिप रीच्ड? क्या ऐसा हो गया? क्या इतना खराब उसका लक है? ये बेसेनियो के मन में क्वेश्चन रेज होता है. अब सेलेरिनो क्या रिप्लाई करता है? सेलेरिनो ने रिप्लाई किया, दिस रिप्लाई, दिस थिंग्स, दिस फर्दर एक्सट्रैक्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. At that time, listen it very carefully. Thank you very much.